Good morning, students. So, again, I welcome you all to the bio class again. So, let us try to again revise what all we have done till now. We have started with the animal tissue in the second half of the chapter, and there we were focusing and understanding the different kinds of animal tissue based on the functionalities they do in our body. We started with the epithelial tissue. We understood all its type. We understood about muscular tissue and its various types we tried to understand. Then we came up to connective tissue. We segregated into various types. We did blood and lymph under fluid connective tissue. We have completed bone and cartilage under skeletal connective tissue. We understood ligament and tendon in dense connective tissue, and finally areolar and adipose tissue under the loose connective tissue. So finally we are in a position to start the last topic or the last kind of animal tissue, which is known as the nervous tissue. So before we start with the topic of nervous tissue, let us take us to a situation where we all are present in the school environment. We are actually at the school and your games period is going on. So this person over here is you or me, anybody it could be, and you are there in your games period and you are playing with the ball that is present over there. Let us bring back the good memories that we had before this lockdown. So if you remember, when we were trying to play such kind of games, it could be any game, ठीक है? तो any game we were playing, if the ball was being passed to you, your body has to take an instantaneous decision to think about that what exactly this thing is, what exactly it has to be done. इस बॉल को किस डायरेक्शन में फेंकेंगे, अगर आप किक करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और किस डायरेक्शन में आप अगर फेंकेंगे तो आपको नुकसान होगा. अगर आपकी बॉडी एक कंप्यूटर सिस्टम होती तो कंप्यूटर सिस्टम में उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दैट एक्ट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विल जनरेट अ सोल्यूशन और वहाँ से कमांड मिलके ये काम हो जाता. बट वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो हियर the solution generation is needed, but we do not have any such central processing unit which is non-living matter. So over here our human body has to take an instantaneous decision after receiving the information from the environment and see what exactly has to done over there, and this also has to be done in fraction of second, even less than 1 second we have to sometime take the decision and do the work. So what does that work we are trying to study in our this class. So here the decision is taken and the action is taken by the human nervous tissue or the human nervous system. This human nervous tissue or system that involves the kind of tissues which are involved in receiving the information and finally taking a decision exactly what has to be done. For example, आप कोई चीज़ सोच रहे हो, you are thinking about something, ठीक है, you are taking certain action like talking, you are getting any emotion in your mind, और आपके हार्ट बीट का डिसीजन, आप दौड़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब के अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कोई कर रहा है, हेल्प कर रहा है, दैट इज़ द human nervous tissue. So exactly we want to understand that where exactly this human nervous tissue is present in the human body. Let us talk about it. So human nervous tissue has basic two parts. Okay, it will have a central nervous system and a peripheral nervous system. Central nervous system जो होता है उसमें brain and spinal cord are the main components, which is the basic organ that will take the decision and in a way it will help the rest of the body to act on it. अब क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आप किचन में जाके यू आर बॉइलिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, नाउ द वाटर हैज़ बॉइल्ड टू अ लेवल सो इट इज़ वेरी हॉट. तो जैसे ही आप अपने फिंगर से इसे टच करोगे इंस्टेंटेनियसली आपके सेंस ऑर्गन्स ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे कि ये जो वेसल हेड इज़ वेरी हॉट. अब इस इंफॉर्मेशन को आपके हैंड से
आपके ब्रेन तक पहुंचाना है, जिसके बीच में काफ़ी सारा गैप है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ओवर हियर एंड इट हैज़ टू रीच द ब्रेन इन ऑर्डर टू टेक अ डिसीजन. सिमिलरली, अगर ब्रेन को आपको बचाना होगा, देन इट हैज़ टू ऑर्डर योर हैंड दैट you should be removing your hand from the hot object. In a way, we want to understand that what exactly connects the brain or the central nervous system to the rest part of the body. So the system that helps to connect the brain and spinal cord to the rest part of the body are nothing but the nerves. Let us try to understand what exactly these nerves are. अगर हम बात करते हैं एक कंप्यूटर के बारे में, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स आजकल तो कम अवेलेबल है. आपने लैपटॉप ज़्यादा देखा होगा. लैपटॉप में भी आपका जो चार्जर होता है वो आपके प्लग पॉइंट के साथ इस तरीके से जुड़ा होता है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट इन दिस सॉकेट इज रिसीव्ड बाय योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन वायर लाइक स्ट्रक्चर. उसी तरीके से आपकी बॉडी में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास जो पहुंचेगी, वो पहुंचेगी बाय द हेल्प ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स मेनी नर्व्स. यहाँ पे जो आप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो लगातार जो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ, दीज आर द नर्व्स. लेट अस टेक अ माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द नर्व्स आर. फॉर एग्जाम्पल, टेक द सेम एक्सप्लेनेशन. अभी आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था. व्हाट हैपेंड? एन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दीज वायर्स और नर्व्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू, दिस इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू द ब्रेन. मतलब ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई आपके सेंस ऑर्गन्स से आपके ब्रेन के पास. अब ब्रेन क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन के बारे में सोचेगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है. अगर ये हार्मफुल है तो इससे एक इन्फॉर्मेशन इसको वापस देनी पड़ी कि एग्जैक्टली करना क्या है, हाथ को हटाना है या हाथ को उससे टच ही करके रखना है. सो इन अ वे दीज कनेक्शंस और वायर लाइक कनेक्शंस आर एक्चुअली कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द होल ऑफ द बॉडी, एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड लाइक फाइबर्स, एंड दीज लॉन्ग स्ट्रैंड लाइक फाइबर्स आर कॉल्ड नर्व्स. अब हम इस नर्व को समझने की कोशिश करेंगे कि नर्व्स एक्चुअली होता क्या है. लेट अस सी दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. अगर आप इस नर्व को, जिसको हमें अभी वायर स्ट्रक्चर हमें मिला था, फॉर एग्जांपल दिस पार्ट, ठीक है, ये आपका वायर स्ट्रक्चर है. अब इस वायर स्ट्रक्चर को अगर आप फोकस करोगे और जूम करना शुरू करोगे, कैमरे में हम जूम ऐसे ही करते हैं, बढ़ाते जाएंगे जूम उसका, तो आप देखोगे नर्व्स आर एक्चुअली कॉम्पोज्ड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स. वो अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट से कनेक्टेड है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज इंडिविजुअल यूनिट्स? व्हेन वी जूम इन दीज इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द नर्व्स अ लिटिल बिट मोर, we will find that it actually consists of long strands of nerve cells or neurons connected end to end. तो ये individual units हैं. These neurons are long nerve cells which forms the structural and functional unit of nervous tissue. ये connected end to end होते हैं, can you see? एंड इफ़ इट इज़ रिवर्टेड, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे काफ़ी हद तक एक ट्री की तरह दिखेगा. जैसे कि ये मेन्स आपका ट्रंक ऑफ द ट्री है, ये ट्री के जैसे रूट्स हैं, एंड दीज रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. सो नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू शो, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट ईच पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन कंप्राइजेस ऑफ, और उसकी लेबलिंग के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे. सो वी विल ऑब्जर्व दैट इन द वीडियो नंबर 2.